बच्चों sorry for late video uploading. Now I will tell you Coulomb force. Coulomb force क्या होता है? देखिए, you know very well positive charge and positive charge body repel each other with a force, repulsion force, and negative charge repel each other. Positive charge, negative charge attract each other. Negative charge, positive charge attract each other with a force. Okay. Now I will tell you the definition of Coulomb's law and then I will describe. When two point charges, when 2 point charges are separated in a medium at a short distance, greater than 10⁻⁻15 मीटर। देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट चार्ज लिया है। पॉइंट चार्ज क्यों लिए जाते हैं? देखिए अगर जैसे ये पेन अभी आप पास में नजदीक में है तो ये तो आपको दिखेगा पॉइंट, लेकिन अब दूर जब जाएंगे तो ये पॉइंट लगेगा काफी दूर तक। अब आपको हम ये बताएं कि पॉइंट चार्ज यानी इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो, जैसे हम कहते हैं चार्ज बॉडी, तो ये गलत हो जाएगा, इनके सेंटर लेते हैं दूर पर, यानी कहने का मतलब इनको पॉइंट चार्ज ही लेंगे। जब डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होती है तो वो बहुत ही स्मॉलर, वेरी वेरी स्मॉल हो जाती है, यानी वो पॉइंट चार्ज को बिहेव करती है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे when 2 point charges are separated in a medium at a short distance greater than 10⁻⁻15 मीटर। अब आपने देखा होगा कि ये अक्सर बुक में ये लिख देते हैं, ये चीजें लिखते हैं, केवल ये लिख देते हैं कि 2 चार्जेस, बल्कि पॉइंट भी कौन ना लिखे, आर सेपरेटेड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। भाई आप ये समझिए कि 10 की पावर अगर -15 मीटर में अगर कोई 2 चार्ज बॉडी होगी, पॉइंट चार्ज होगा, तो उनके बीच में कूलॉम्ब फोर्स वैलिड नहीं है, कूलॉम्ब फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट द diameter of nucleus is 10⁻⁻15 meter. If the distance between 2 point charges are at a 10⁻⁻15 meter, it means they are inside the nucleus, and inside nucleus Coulomb force is not applied, exchange force applied होता है। आगे आपको वीडियो बताएंगे न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये आगे बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा है 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, तभी कूलॉम्ब फोर्स वैलिड होगा। और चार्जेस, जो चार्ज बॉडी है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तभी कूलॉम्ब फोर्स वैलिड होगा। यू नो वेरी वेल दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्ब फोर्स। At a short distance greater than 10⁻⁻15 meter, then the force of either attraction or repulsion between them, the force of
either attraction or repulsion between them is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the definition of Coulomb force. Complete definition of Coulomb force. Coulomb force between 2 point charges should be directly proportional to the product of their charges and should be inversely proportional to the square of the distance between them. यानी स्क्वायर इनवर्सली स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है कूलॉम फोर्स. उतार लिया. Point charges are Q1 and Q2 and are separated at a distance R. Then ये Q1 हो गया, ये Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R इन मीटर. देखिए इनके बीच में जो फोर्स का ये फोर्स देखिए आपको बताएं जो कूलॉम फोर्स है ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. तो हियर आई विल मेंशन the magnitude of Coulomb force is directly proportional to the product of their charges Q1 and Q2 first, and the force is inversely proportional to the square of the distance combining both 1 and 2. We shall find Q1 Q2 upon R square. When we eliminate the sign of proportion, then we shall have to write the constant. In other way, we can say that proportional की जगह पर अगर equal लिखना चाहते हैं equal तो हमें constant लिखना पड़ेगा और ये constant on the basis of experiment 1 upon 4 pi epsilon naught k Q1 Q2 upon R square. Here epsilon naught
is the permittivity of free space. Free space. ओके, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस and its value is on the basis of experiment एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड हियर K is dielectric constant of the medium. Dielectric constant of medium. Dielectric constant of medium. आपने नोट कर लिया इधर, इसको रफ कर रहे इधर, ठीक। For air or vacuum, dielectric constant K की वैल्यू कितनी होगी? 1. For any material, for any medium, K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। K की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा या तो 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, कभी लेस देन 1 नहीं होती, ध्यान रखिएगा। फॉर मेटल K की वैल्यू होती इंफिनिटी। K की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। तो आपने ये देखा, अभी देखिए इसको रफ करें, अब देखिए फॉर एयर कर रहे हैं अगर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, इसका यूनिट का टेंशन दीजिएगा, ठीक है, ये इसकी यूनिट होगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर इन द प्लेस ऑफ दिस वी शैल राइट, और ये वैल्यू कैसे आई? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये कूलॉम फोर्स हो गया। कूलॉम फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं इसको, और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है, पॉइंट बेस होता है क्योंकि, ओके। और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन होती है along the axis joining two charges along the axis। समझ आ गया? ये आपका कूलॉम फोर्स हमने कंप्लीट किया, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म।